Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. सर जब आज बैटिंग चल रही थी आई नो कि मतलब आप यही सोच रहे होंगे कि ये सब जैसे हो आगे निकल जाए बिना विकेट गिरे बट क्या जैसे अगले दिन की भी कुछ थॉट प्रोसेस चल रही है कि ये विकेट कैसा जाएगा अभी आप गए भी थे विकेट की तरफ थोड़ा सा बता पाएंगे कि आपको क्या लग रहा है आगे की प्लानिंग क्या है कि आर बाय आर देखो हाफ एन आवर देखो नया बॉल देखो क्या सोच रही है टीम इंडिया कल की विकेट ऑब्वियसली फिफ्थ डे का विकेट है तो थोड़ा वेर एंड टेयर तो कोई भी टेस्ट विकेट में होगा ही, बट विकेट अच्छा है. ओड बॉल कभी स्पिन कर रहा है, उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं. और आज भी और कल भी आई थिंक प्रोबेबली आवर बाय आवर देन सेशन वैसे ही देखना चाहिए, चाहे वो पहली इनिंग हो, दूसरी हो या फोर्थ इनिंग हो. आज तो शाम में आखिरी ओवर से पहले जब राहुल को बॉल लगी थी तो अंपायर ने वीडियो को नहीं आने दिया, ड्रिंक्स भी नहीं आने दिया. तो ये पहले 3 टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो उसको आप कैसे देखते हो? क्या इससे पहले अंपायर जो मैच रेफरी ने मीटिंग करके बोला था कि हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे बाकी दो टेस्ट के लिए वो आई डोंट थिंक अंपायर ने ना बोला. आई थिंक मे बी वो बैटिंग में था और उसको मे बी स्टॉप नहीं चाहिए होगा, बिकॉज इंजरी में जब तक मुझे नॉलेज अंपायर ना नहीं बोल सकते. Kodak bhai, few words on the two batsmen. Great recovery, great partnership. Something on both the two batsmen. I think a lot of belief and determination KL and Gill has shown. Obviously, it's tough when you lose 2 early wickets, but I think at lunchtime also, I felt they had that belief that we'll take some time, see first 10-15 overs and then take it from there. So absolutely brilliant the way they batted. क्या बोल सकते हैं कि जो राहुल का टेम्पलेट है, जो टेक्निक जो से बैट कर रहे हैं, वो सब बाकी सब के लिए फॉलो करने का एक एग्जांपल है. और दूसरा ऋषभ पंत के बारे में पता चला कि वो बैटिंग कर रहे हैं. राहुल का टेक्निक टेस्ट मैच के लिए नया बॉल सब प्लेयर डिफरेंट है, बट राहुल ऐसे ही खेलता है एंड ही हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द सीरीज. ऋषभ आई थिंक ही विल बैट टुमारो. यस. So that's why number 3 has been an area of concern in terms of so obviously we lost 2 wickets in this series. Number 3 has has had starts, but somehow it's not been working out. Being the batting coach, how do you look at it, and is that how do you plan to address that going forward? I don't think it's been a problem, to be very honest. Yes, after Karun also got few start and got out, and then Sai also in first game scored 30 in second inning and got out. But I don't think it's area of concern, to be very honest. And the way Sai batted in first inning was very good. Second inning, obviously, he got out first ball, so very early. I'm sure, obviously, when someone like Gill, who is a free-flowing batsman, when you are out there to save a test match, what do you tell them? It's very easy for him to go into his shell. How important is that he keeps his natural game going, and what are the shots or things that you want to cut out as well? See, from Australia series to this series, I have also seen that his thought process and way he batted, it's little different than what he has done in Australia. So obviously he has thought about it. We discussed, but I would give a lot of credit to him for deciding on that wicket what he wants to play, when he wants to play. And I think he successfully played certain shots and successfully he avoided playing certain shots. So I would give a lot of credit to him for that, because every batsman, some stage of their life, they think and they change the way they bat in Test cricket. And Subman seemed to be doing that brilliantly in this England series. Coach, अगर ये जो हमारा बैटिंग लाइनअप है इसमें कोई सो कॉल्ड टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं है. सारे प्लेयर्स जो ऑल फॉर्मेट्स खेलते हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे T20
domestic IPL and all that. तो ऐसे फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर्स जब होते हैं तो जैसे 5 सेशन हमें बैटिंग करना है ये मैच सेव करने के लिए, ऐसा जब सिचुएशन था तो जैसे इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ओनली कि इस ऐसे सिचुएशन बहुत रेयर होते हैं कि हम 5 सेशन बैटिंग करते हैं मैच, तो आप एज ए बैटिंग कोच क्या एडवाइस देते हो या किस चीज पे फोकस रहता है कि इतना लंबा खेलना है इस ऐसे मैच को जीतने के लिए ऑन अ विकेट व्हिच इज वेरी लाइक अनप्रेडिक्टेबल? अगर पर्सनली आप मुझे पूछो तो आई थिंक प्री प्लान नहीं खेलना है, मेरिट ऑफ द बॉल खेलना है एंड समटाइम अननेसेसरीली रिस्क अवॉइड कर सकते हैं आप। एंड एक स्टेज के बाद आप अगर सेट हो और आप डिसाइड करते हो कि अनड्यू शॉट्स नहीं खेलोगे तो आइदर की बॉल ऐसा विकेट से कुछ बिहेव हो या तो बॉल इतना अच्छा चला जाए। इन लोगों की बैटिंग क्वालिटी ऐसी है कि आज जैसे खेले वैसे खेल ही सकते हैं और ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो अभी सारे ही है क्योंकि सब लोगों को T20 IPL भी खेलना है, इंटरनेशनल भी खेलना है, वाइट बॉल भी सबको खेलना है। बट आई थिंक एज अ बैट्समैन सारे फॉर्मेट खेलते हुए आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप जो फॉर्मेट और जो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हो वो सिचुएशन के हिसाब से खेलो। वो अगेन स्किल से ज़्यादा मेंटल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कुछ मैच शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने कहा था कि करुण नायर को वो कॉन्फिडेंस देंगे, बैक करेंगे एंड ही वाज होपिंग ही विल टर्न अराउंड इन दिस सीरीज, बट अगले दिन करुण नायर ड्रॉप हो जाते हैं, साई सुदर्शन खेलते हैं। तो थोड़ा आप एज अ बैटिंग ग्रुप को थोड़ा बताइए क्या डिस्कशन रही कि करुण को ड्रॉप किया गया इस मैच के लिए और साई खेले, और कभी ऐसा कुछ डिस्कशन था कि शायद दोनों ही 11 का हिस्सा हो सकते हैं? सिलेक्शन की जो बात है वो तो ऑब्वियसली गौतम और कैप्टन के ऊपर है और अगर मैं भी उसका पार्ट हूँ तो भी वो बताना वर्थ नहीं है। बट उसने बोला कि हम बैक करेंगे, उसका मतलब कि जो ये सीरीज में जैसे उन्होंने बैटिंग की है वो खराब तो बैटिंग उसने की ही नहीं है, हर बार अच्छा स्टार्ट मिला। अभी समटाइम्स अगर टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ये स्टेज पे मे बी 4th टेस्ट मैच उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट हो सकता है तो हम चेंज कर सकते हैं तो वो कर ही सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीम मैनेजमेंट बैक नहीं कर रहा है। Coach, you spoke about the quality of batsmanship. It's also backed up by the numbers in the sense that Gill, Rishabh, a lot of them have got a lot of runs through the series. Does that not tempt you to put all the responsibility of run making in a series where they're already doing and therefore play an extra bowler, a specialist bowler? Play one more bowler, you are saying? Yeah, instead of playing, say, another all-rounder that you sort of stretch the batting, when the top order is anyway scoring a lot of runs and has been doing. Yes, there have been collapses, but is that not a trade-off that you can do back the top order that is doing well to take the responsibility and play a strike bowler? I think batsmen have performed, but on these wickets, depending on when you don't know whether you lose the toss, you'll win the toss. You don't know what sort of a start you're going to get. So when you pick a team, I think you'll try and pick a balanced team. You can't go because last game 3 guys got 100, we can play less better. Or another thing is because our both spinners are also a good batsman, we are playing 2 spinners and 3 regular fast bowler plus pace bowling all-rounder. So in that also sometime we feel that 6 bowler is not getting enough bowling. And then in last one of my things, somebody asked also that Sardul didn't bowl that much. So when you have 6 options, you anyway captain struggles to bowl all 6 equally, distribution and all. So if you play pure 4 fast bowlers on this wicket, would you back that pure 4 fast bowler on this wicket after 4 days? So it depends obviously, but picking an 11 you'll always try and keep that balance of batting and bowling. ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।